क्यों सहना पड़ता है? It is for them to become humble before God and humble before others. ताकि वे परमेश्वर और औरों के सामने दीन और नम्र बने। God allows them to become humble so that He can lift them up above everyone else in the world. परमेश्वर धर्मियों को औरों के सामने दीन और नम्र बनने देता है ताकि वो उन्हें ऊंचे पर पदस्थ In the करे। midst of becoming humble, इस नम्र बनने के दरमियान how do we survive? हम किस तरह से बचे रह सकते When you become or made to become the least amongst everyone, जब आपको बाकी सारे लोगों के बीच में सबसे छोटा कर दिया, how do you rise up? आप कैसे ऊपर उठेंगे? This verse says, यह वचन कहता है, my soul makes its boast in the Lord. मेरा प्राण यहोवा की ही बड़ाई करता है। He is greater in me than all the defeats, all the sorrow, all the pain, all the attacks that have come against me to make me humble. वो उन सारे दुख, दर्द, परेशानियों, चिंताओं से ऊपर है जो मुझे नम्र बनने के लिए आए हुए हैं। Greater is He that is in you than he that is in the world. वो जो आप में है कहीं उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। Let your soul boast in the Lord, who has the power to lift you up from your humble, empty and lost status. आपका प्राण परमेश्वर की बड़ाई करे जो आपके उस खाली और सूने और खोए हुई स्थिति से आपको उबार सकता है। When the angel of God appeared to Mary, the mother of Jesus, जब यीशु की माता मरियम के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ and said, the Holy Spirit will come upon you. और कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, You are a virgin, तो एक कुंवारी है, but yet you will conceive. तो भी तो गर्भ धारण करेगी, God's seed will come into your womb, परमेश्वर का बीज तेरे गर्भ में आएगा and you will bring forth the one who is holy. और तू उसे जो पवित्र है जन्म देगी। Jesus the Savior. यीशु जो उद्धार करता है। She said, और उसने कहा, I am the handmaiden of God. देख मैं परमेश्वर की दासी हूँ, I humble myself. मैं अपने आप को दीन करती हूँ, I put down my desires and my fears and I just surrender with all humility. मैं अपनी हर एक लालसा को और अपने डर को त्यागती हूँ और मैं पूरी दीनता नम्रता के साथ समर्पण करती हूँ। And then she says, और उसके बाद वो कहती है, Luke chapter 1 and verse 47 and 48. लूका 1 और उसके वचन 47 और 48 में, My spirit rejoices in God my Savior. मेरा प्राण यहोवा मेरे उद्धार करता में आनंदित है। In this world I will have no joy, मुझे संसार में भले ही कोई आनंद न हो, because if the person who has been betrothed to me hears about it, he may cast me away. क्योंकि जिससे मेरी सगाई हुई है जब इसके बारे वो सुने तो शायद वो मेरा त्याग कर My देगा, family may cast me away. मेरा परिवार मुझे त्याग कर देगा, People may even stone me to death चाहे लोग जो है पथरवाह करके मुझे मार डालेंगे, because I have a child, even though I am a virgin. क्योंकि जो भी मैं कुंवारी ही हूँ, मैं गर्भ से हूँ, But yet I surrender. तो भी मैं समर्पण करती हूँ। Surrender saying, I obeyed God. ये कहते हुए समर्पण कि मैंने यहोवा की आज्ञा मानी है Given myself, my womb to God. और मैंने अपने आप को, अपने गर्भ को परमेश्वर को दिया है। But God has remembered me in my humble state. लेकिन परमेश्वर ने मेरी दीन दशा में मुझे स्मरण किया है, Made me His servant. मुझे अपनी दासी बनाया है And all the generations after me will call me blessed. और सारी पीढ़ियां मेरे बाद मुझे धन्य कहेंगी। 2000 plus years have passed by. आज तक 2000 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं, Still, the mother of our Lord, Mary, is called blessed. और आज तक हमारे यीशु की माता मरियम जो है वो धन्य कही जाती है। As you have humbled yourself to surrender to the will of God in your life, even though it be a cross, God will keep you blessed. जबकि आपने अपने आप को समर्पित किया है परमेश्वर की इच्छा के लिए, चाहे वो आपके लिए क्रूसी क्यों न हो,
आप आशीषित होंगे। Surrendering yourself to the will of God. अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करें Humbling yourself. और अपने आप को दीन करें You will be made glad. और आप आनंदित किए जाएं। Your family will be made glad. आपका परिवार आनंदित होगा। Your generations will be made glad. आपकी पीढ़ियां जो है वो आनंदित होंगी You'll be called blessed. और आप धन्य कहलाएंगे। Father, give this grace to thy son, your daughter. पिता अपने बेटे अपनी बेटी को यह अनुग्रह दें, Let them fulfill your will with all humility as your servant. आपके दास और दासी के रूप में पूरी दीनता के साथ वे आपकी इच्छा पूरी करें। Bless them 1,000 times and elevate them and call them blessed. आप उन्हें 1000 गुना आशीष दे करके बढ़ाएं और उन्हें धन्य कहें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।